Good morning, students. We are doing our poem Shall I Compare Thee? And this is the lecture 2 of this poem. It is written by William Shakespeare. This is a very famous sonnet by Shakespeare, and the full title is Shall I Compare Thee to a Summer's Day? The poem has a theme of eternity, everlastingness, ठीक है, टाइमलेसनेस, अनंत काल की जो थीम है वो पोएम में एक बड़े व्यापक स्तर पर ये एक मेजर थीम है। और वैसे अगर हम देखें तो साइड बाय साइड अ थीम विल बी going on is the theme of the power of art to immortalize anything, ठीक है। तो continuing with the text, the first quatrain we have completed and now we will be doing a second quatrain. So the poet says, sometimes too hot, the eye of heaven shines. In the first quatrain, the poet is trying to compare the beauty of his beloved to that of a summer day, as summer is a symbol of beauty, nature's beauty in the western part of the world. So the poet tries to compare the beauty of his beloved to that of the beauty to that of beautiful day in the summer season. But then he finds out some limitations in the summer season, that the summer season is time bound. It is for a short period of time, कि वो कुछ ही वक्त के लिए जो है नेचर में ये सुंदरता आती है समर सीजन की। दूसरी जो लिमिटेशन है, इट इज़ दैट इन द समर सीजन ऑल्सो टेक्स सम एक्सट्रीम फॉर्म, एंड इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म harsh weather, that when this season becomes harsh, rough winds blow, and it affects, or it rather destroys, the gentle buds which appear in the month of May. जो नाजुक सी कलियां खिलती हैं मई के महीने में, तो उसको क्या करता है, जब जो रफ विंड्स ब्लो करती हैं समर सीजन में, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। The crux is that summer season also has a limitation, also has some harshness in itself. But my beloved, you do not have any harshness, you do not have any rough quality in yourself, and you are not bound with nature. Your beauty is not bound with the beauty with the time of nature, ठीक है। जैसे समर सीजन जो है वो तो नेचर से बंधा हुआ है कि हाँ वो कुछ ही वक्त के लिए रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। द सीजन आर बाउंड टू चेंज, बट योर ब्यूटी इज़ एवर लास्टिंग, अनंत काल के लिए, आदि काल के लिए जो तुम्हारी जो खूबसूरती है वो रहेगी, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग विच द पोइट सेड इन द फर्स्ट क्वाट्रेन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वाट्रेन, द पोइट सेज, sometime too hot the eye of heaven shines, and often in his gold complexion dimmed. Now, a very beautiful metaphor the poet uses here for the sun is the eye of heaven. Eye of heaven is the metaphor which the poet is using for sun. So he says that sometime too hot the eye of heaven shines, that the eye of heaven is shining so harshly कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब सूर्य चमकता है कई बार। इट मीन्स दैट द समर सीजन इज़ समटाइम वेरी हार्श, कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जो कि असहनीय हो जाती है। तो जो वो खूबसूरती है वो उसकी क्या बन जाती है, दैट टर्न्स इनटू अ पनिशमेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कि जब हल्की हल्की गुनगुनी धूप हो रही है तब तो वो बहुत वेदर सुंदर लग रहा है, बहुत सुहावना लग रहा है, बट जैसे ही सूरज ने बहुत तेज़ चमकने लगता है तो वही वेदर क्या है, वो हार्शनेस में तब्दील हो जाता है और वो एक तरह से सज़ा लगती है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल ब्यूटिफुल, एंड often in his gold complexion dimmed. Now the next is, he says that when clouds appear or when rain comes, तो क्या होता है, जो सूरज का जो कॉम्प्लेक्शन है जो कि वैसे गोल्ड की तरह चमकता है एकदम, इट अपीयर्स एज इफ गोल्ड इज शाइनिंग, तो वो क्या हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। डिम्ड मतलब धुंधला पड़ जाना। इट
इट डू नॉट शाइन दैट मच विथ दैट मच ऑफ ब्राइटनेस, ठीक है। तो इन द क्लाउडी weather, the gold complexion of the sun declines, and every fear from fear sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. And every fear means everything that is beautiful. The point here says that everything that is beautiful changes with time. It is bound to change. जो भी चीज़ है, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ है, उसको समय के साथ क्या है, चेंज होना ही होना है. इट इज़ बाउंड टू चेंज विथ टाइम. इट विल नॉट रिमेन ब्यूटीफुल एवर. वो चेंज होगा ही होगा. सो ही सेज दैट एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन, कि जो भी चीज़, एंड एवरी फेयर हियर मीन्स ब्यूटीफुल, कि जो भी चीज़ फेयर है, जो भी चीज़ ब्यूटीफुल है, जो भी चीज़ सुहावनी है, फ्रॉम फेयर मीन्स its beautiful position, it will change. Sometime declines means गिर जाती है. Its beauty changes or fades away by chance, by luck, by bad luck, bad omen, ठीक है, उसके द्वारा. और या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर नेचर के द्वारा, बिकॉज नेचर का जो कोर्स है दैट इज अनट्रिम्ड, अनमॉडिफाइड, जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है. कहने का मतलब चेंज जो है, बदलाव जो है, वो नेचर का अटूट हिस्सा है. दैट एवरीथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल इट इज़ बाउंड टू चेंज, कि वो अपनी उस अवस्था से चेंज उसको होना ही होना है, ठीक है. तो ही सेज दैट सन जो है, ही यूजेस द वेरी ब्यूटिफुल मेटाफर आईज ऑफ हेवन, कि सन जो है कभी तो बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमकता है, दैट इट बिकम्स टू हॉट for us to handle, and in that situation the beauty appears as if punishment, ठीक है. And in the next condition he says and often in his gold complexion dimmed, कि और कई बार क्या होता है कि उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, मतलब कॉम्प्लेक्शन मतलब कलर, कि वो जब चमकता है सूरज तो ऐसे बिल्कुल गोल्ड की तरह से लगता है, वो क्या होता है, वो धुंधला पड़ जाता है. कब पड़ेगा? ऑब्वियसली इन द रेनी टाइम और इन द क्लाउडी वेदर, ठीक है, क्लाउड्स के कारण. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस, और इन दीज टू लाइन्स द पोएट फोकसेस अपॉन द चेंजफुलनेस ऑफ नेचर, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उसको चेंज होना ही होना है, कि अवस्था जो है वो उसकी बदलनी ही है, ठीक है. So this is the thing which the poet is saying in the second quatrain. The last quatrain we will be doing in the next video.